तेरा, तू अंतरजामी पुरख भगवान। दासन दास कहे जन नानक, जिहा तू कराहें तिहा हूँ करी बखिया। दासन दास कहे जन नानक, जिहा तू कराहें तिहा हूँ करी बखिया। सतनाम वाहिगुरु साहिब जीओ, पवित होए से जना, जिनी हर ध्याया। हर ध्याया पवित होए, गुरमुख जिनी ध्याया। पवित माता पिता कुटुंब सहित स्यों, पवित संगत सभाइया। कहंदे पवित सुनदे पवित, से पवित जिनी मन वसाया। कहे नानक से पवित, जिनी गुरमुख हर हर ध्याया। कहंदे पवित सुनदे पवित, से पवित जिनी मन वसाया। कहे नानक से पवित, जिनी गुरमुख हर हर ध्याया। वाहिगुरु जी का खालसा, वाहिगुरु जी की फतेह। हर एक चीज़ का कोई ना कोई अपना असला है, उहदा कोई पिछोकड़ है। जदों वो चीज़ अपने असले तो विछड़ जाए, उहदे गुण गल जाते हैं, एक औगण पैदा हो जाते हैं। औगण रत्ती कोई भी चीज़ होवे, वो मैली हो जाती है, उसकी पवित्रता गुआच जाती है। गुरबाणी विच एक दृष्टांत है। एक छोटा जिहा सरोवर है, वगदे पानी नाल सांझ पाई हुई है। लोग उस सरोवर के किनारे दूरों पारों आके बैठते हैं। कोई खाना लेके आता है, कोई बच्चों को लेके आता है, कोई सज्जणा मित्रों नाल आउंदा है, कोई उदास होया अपना मन खुश करने वास्ते आता है। सरोवर की झोली विच इतनियां खुशियां ने, हर एक नूं खुशियां दे के दौड़दा है। सबब बनिया, कुछ समय बाद उस सरोवर के जितने भी गुण सन सारे गल गए। ਜਿਹੜੇ ਉਹਦੇ नेड़े बैठते सन हुण दूर पार होके लंघते हैं। ਜਿਹੜੇ ਉਹਦੇ कोल बैठ के कुछ खाते सन वो कहते ने सरोवर लंघ जाए फिर अगे जाके खावांगे, इत्थों दुर्गंधी आउंदी है। गुरु नानक साहब जी इस दुखड़े नूं महसूस करते हैं। मनुख नूं समझाउण वास्ते उस सरोवर नाल दो गल्लां करते हैं। कहते भलिया, मैं तेरी सुहप्पण भी देखी है, पर मैं तेरी करूपता भी देखी है। मैं हैरान है, इतनी सुहप्पण का मालिक करूपता दे विच किवें बदल गया। सरोवर जवाब देंदा है सानू समझाउण वास्ते। उन्हें आख्या मेरे कोलों हंकार हो गया। मैं सोचिया तू नाल दी वगदा दरिया, वगदा पानी, तैनू कोई नहीं पुछदा, लोग तो मेरे किनारे आके बैठते ने ना।
ਕੁਦਰਤੀ ਭਾਣਾ ਵਰਤਿਆ, ਮੇਰਾ ਉਹਦੇ ਨਾਲੋਂ ਵਗਦੇ ਪਾਣੀ ਨਾਲੋਂ ਸੰਬੰਧ ਟੁੱਟ ਗਿਆ। ਮੈਨੂੰ ਨਹੀਂ ਸੀ ਪਤਾ ਮੇਰੀ ਖੂਬਸੂਰਤੀ ਉਹਦੇ ਕਾਰਨ ਹੈ। ਹੋਇਆ ਕਿ ਹੁਣ ਉਹ ਟੁੱਟ ਜਾਣ ਦੇ ਕਾਰਨ ਮੇਰੇ ਕੋਲੋਂ ਉਹ ਜਿਹੜੇ ਔਗਣ ਨੇ ਉਹ ਪੈਦਾ ਹੋ ਗਏ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਰਮ ਪੈਦਾ ਹੋ ਗਏ, ਫੁੱਲ ਮੁਰਝਾ ਗਏ। ਉਹ ਜਿਹੜੇ ਕਲੋਲਾ ਕਰਦੇ ਭੌਰੇ ਸਨ ਉਹ ਚਲੇ ਗਏ। ਗੁਰਬਾਣੀ ਦਾ ਬਚਨ ਹੈ, ਬੱਬਰ ਤੂੰ ਹਰਿਆਵਲਾ ਕਵਲਾ ਕੰਚਨ ਵਨ, ਕਹਿ ਦੁਖੜੇ ਸੜਿਓਏ, ਕਾਲੀ ਗੋਈਆ ਦਿਹੁਰੀ ਨਾਨਕ ਮਨ ਤਨ ਭੰਗ। ਜਾਣਾ ਪਾਣੀ ਨਾ ਲਹਾਂ ਜੈਸੇ ਤੀ ਮੇਰਾ ਸੰਗ, ਜਿਤ ਡਿਠੈ ਤਨ ਪਰਫੁੜੈ ਚੜ੍ਹੈ ਚਬੱਗਣ ਬਨ। ਮਨੁੱਖ ਦੀ ਆਹੀ ਕਹਾਣੀ ਹੈ। ਦੁਨੀਆ ਵਿੱਚ ਆ ਕੇ ਆਪਣੇ ਅਸਲੇ ਤੋਂ ਵਿਛੜ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਅਸਲੇ ਤੋਂ ਵਿਛੜ ਕੇ ਫਿਰ ਮੁੜ ਕੇ ਮੈਲਾ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਇਤਨਾ ਔਗਣਾਂ ਦਾ ਭਰ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਇਤਨਾ ਔਗਣਾਂ ਦਾ ਭਰ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਫਿਰ ਉਹ ਨਿਰੰਕਾਰ ਦੇ ਦਰ ਤੱਕ ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਸੰਸਾਰ ਵਿੱਚ ਵੀ ਪ੍ਰਵਾਨ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ। ਪਰ ਮੇਰੇ ਮਾਲਕ ਦਾ ਨਾਮ ਹੈ ਜਿਹੜਾ, ਉਹਦੇ 'ਚ ਬੜੀ ਵੱਡੀ ਤਾਕਤ ਹੈ, ਉਹ 'ਚ ਬੜੀ ਵੱਡੀ ਤਾਕਤ ਹੈ। ਉਹ ਅਜਿਹੇ ਮਲੀਨ ਹੋਏ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਮੁੜ ਪਵਿੱਤਰ ਕਰ ਦਿੰਦਾ ਹੈ। ਪਿਛਲੇ ਜਿਹੜਾ ਬੰਦ ਸੀ ਉਹਦੇ 'ਚ ਆਪਾਂ ਵਿਚਾਰ ਚੁੱਕੇ ਹੋਏ ਹਾਂ। ਇਹ ਸੁਹੇਲਾ ਸ਼ਬਦ ਸੁਹਾਵਾ, ਸ਼ਬਦੋ ਸੁਹਾਵਾ ਸਦਾ ਸੁਹੇਲਾ, ਸਤਿਗੁਰੂ ਸੁਣਾਇਆ। ਇਹ ਤਿੰਨ ਕੈ ਮਨ ਵਸਿਆ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਮਨ ਵਿੱਚ ਵਸ ਗਿਆ ਉਹ ਪਵਿੱਤਰ ਹੋ ਗਏ। ਪਵਿੱਤਰਤਾ ਮਨੁੱਖ ਨੂੰ ਪਤਾ ਨਹੀਂ। ਗੁਰਬਾਣੀ ਵਿੱਚ ਬੜਾ ਪਿਆਰਾ ਬਚਨ ਹੈ, ਕਹਿੰਦੇ ਅੰਤਰ ਮਨ ਲੱਗੀ ਨਹੀਂ ਜਾਣੇ, ਬਾਹਰੋਂ ਮਲਮਲ ਧੋਵੇ। ਮੈਲ ਤਾਂ ਇਹਦੇ ਅੰਦਰ ਲੱਗੀ ਹੋਈ, ਸਮਝਦਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਵੀ ਮੈਲ ਲੱਗੀ ਹੋਈ ਕਿੱਥੇ ਹੈ, ਤੇ ਬਾਹਰੋਂ ਸਰੀਰ ਧੋਈ ਜਾਂਦਾ, ਤੇ ਬਾਹਰਲਾ ਸਰੀਰ ਧੋਤਾ ਹੋਇਆ ਪ੍ਰਮਾਣ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ। ਸਤਿਗੁਰ ਦੀ ਬਾਣੀ ਦਾ ਨਿਰਮਲ ਬਚਨ ਪੜ੍ਹਦੇ ਹੋ, ਨਹਾਵਣ ਚੱਲੇ ਤੀਰਥੀ ਮਨ ਖੋਟੇ ਤਨ ਚੋਰ, ਇੱਕ ਭਉ ਲੱਥੀ ਨਾਤੀਆਂ ਬੋਝ, ਦੋ ਭਉ ਚੜੀਏ ਸੋਹਰ, ਬਾਹਰ ਧੋਤੀ ਤੋਮੜੀ ਅੰਦਰ ਵਿਸਨ ਔਰ, ਸਾਧ ਭਲੇ ਅਨਨਾਤਿਆਂ ਚੋਰ ਸੇ ਚੋਰਾ ਚੋਰ। ਲੌਕੀ 68 ਤੀਰਥ ਨਹਾਈ, ਕੌੜਾ ਪਨ ਤਉ ਨਾ ਜਾਈ। ਉਹਦੇ ਅੰਦਰਲਾ ਕੌੜਾਪਣ ਤੇ ਖਤਮ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ, ਉਹਦੇ ਅੰਦਰਲੀ ਮਲੀਨਤਾ ਖਤਮ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ। ਹਜ਼ੂਰ ਕਿਰਪਾ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਰੱਬ ਦੇ ਨਾਮ ਦਾ ਸਹਾਰਾ ਲਿਆ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਕੌਣ ਕੋ ਕਲੰਕ ਰਿਹੋ, ਰਾਮ ਨਾਮ ਨੀਤ ਹੀ, ਪਤਿਤ ਪਵਿੱਤ ਭਏ ਰਾਮ ਕਹਿਤ ਹੀ। ਕਹਿੰਦੇ ਕਿਹੜਾ ਦੁਨੀਆ ਦਾ ਕਲੰਕ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਉਸ ਮਨੁੱਖ ਦੇ ਨਾਂ ਤੇ ਯਾਦ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ ਜਿਹਨੇ ਰੱਬੀ ਨਾਮ ਦਾ ਸਹਾਰਾ ਲੈ ਲਿਆ। ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਬਾਣੀ ਦਾ ਬਚਨ ਹੈ, ਮੇਰੀ ਜਾਤ ਕੁੱਟ ਵੰਡ ਲਾ, ਢੋਰ ਢਵੰਤਾ ਨਿਤੈ ਬਨਾਰਸੀ ਆਸ ਪਾਸਾ, ਅਬ ਵਿਪਰ ਪ੍ਰਦਾਨ ਤੇ ਕਰੇ ਡੰਡੌਤ, ਤੇਰੇ ਨਾਮ ਸ਼ਰਣਾਏ ਰਵਿਦਾਸ ਦਸ। ਕਹਿੰਦੇ ਮੇਰੀ ਤਾਂ ਜਾਤ ਸੀ, ਚਮੜੇ ਦਾ ਕੰਮ ਕਰਨਾ ਮੇਰਾ ਕਾਰੋਬਾਰ ਸੀ, ਲੋਕ ਬੜੀ ਨਫ਼ਰਤ ਕਰਦੇ ਸਨ ਮੇਰੇ ਤੋਂ, ਪਰ ਮਾਲਕ ਨੇ ਕਿਰਪਾ ਕਰ ਦਿੱਤੀ, ਉਹਦੇ ਨਾਮ ਦਾ ਸਹਾਰਾ ਲੈ ਲਿਆ। ਅੱਜ ਜਿਹੜੇ ਵਿਪਰ ਪ੍ਰਧਾਨ ਨੇ, ਮੁਖੀਏ ਵਿਪਰ ਨੇ, ਉਹ ਵੀ ਆ ਕੇ ਮੈਨੂੰ ਨਮਸਕਾਰਾਂ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਨਮਸਕਾਰਾਂ ਕਰਦੇ ਨੇ। ਕਿਉਂ? ਕਿਉਂਕਿ ਤੇਰੇ ਨਾਮ ਵਿੱਚ ਏਡੀ ਵੱਡੀ ਤਾਕਤ ਹੈ। ਪਤਤ ਪਵਿੱਤ ਲੀਏ ਕਰ ਆਪਣੇ, ਸਗਲ ਕਰਤ ਨਮਸਕਾਰੋ, ਵਰਨ ਜਾਤ ਕੋ ਪੁੱਛੈ ਨਹੀਂ, ਬੰਛੈ ਚਰਨ ਰਵਾਰੋ। ਜਿਸ ਨੀਚ ਕੋ ਕੋਈ ਨਾ ਜਾਣੇ, ਨਾਮ ਜਪਤ ਉਹ ਚੌਂਕੁੰਟ ਮਾਨੇ। ਤੇਰੇ ਨਾਮ ਵਿੱਚ ਏਡੀ ਵੱਡੀ ਤਾਕਤ ਹੈ ਸਾਈਆਂ, ਉਹ ਪਵਿੱਤਰ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਸੰਸਾਰ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਵਿੱਤ ਕਹਿੰਦਾ ਹੈ। ਭਾਈ ਗੁਰਦਾਸ ਜੀ ਨੇ ਇੱਕ ਬੜਾ ਪਿਆਰਾ ਬੋਲ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਇੱਕ ਉਸ ਵੇਲੇ ਦੇ ਜ਼ਮਾਨੇ ਵਿੱਚ ਚੱਲੀ ਹੋਈ ਕਹਾਣੀ ਦਾ ਸਹਾਰਾ ਲੈ ਕੇ ਸਾਡੇ ਦਿਲਾਂ ਦੇ ਬੂਹੇ ਨੂੰ ਖੜਕਾ ਕੇ ਪ੍ਰੇਰਨਾ ਕੀਤੀ, ਉਹ ਮਨਾ ਤੂੰ ਵੀ ਰੱਬ ਦੇ ਨਾਮ ਦਾ ਸਹਾਰਾ ਲੈ ਲੈ, ਰੱਬ ਦੇ ਨਾਮ ਦਾ ਸਹਾਰਾ ਲੈ ਲੈ। ਬੜੇ ਪਿਆਰੇ ਬੋਲ ਨੇ, ਮੈਂ ਚੰਦ ਬੋਲੀ ਕਹਿਣੇ ਚਾਹੁੰਦਾ। ਗਨ ਕਾ ਪਾਪਣ ਹੋਏ ਕੈ, ਪਾਪਾ ਕਾ ਗੜ ਹਾਰ ਪਰੋਤਾ। ਇੱਕ ਬੁਰੇ ਕਰਮ ਕਰਨ ਵਾਲੀ
सवेर तो शाम तक पता नहीं किन्ने लोगों के घर उजाड़ती है। गनका पापण होए कै पापा कागड़ हार परोता, महापुरख अचान चक गनका बाड़े जाए खड़ोता। दुरमत देख दयाल होए, हथों उसनू दितौन तोता। गनका ने वेख्या मेरे द्वारे ते बुरे कर्म करने वाली जे द्वारे ते कोई फकीर आया, शायद फकीरी का लिबास होवे, फकीर ना होवे। आप आ गई, मेरे घर तुसी आए हो, कोई सेवा दसो। फकीर ने भी देखा मैं गलत थां ते रुक गया। उन्हें उस वेले एक तोता सी उहदे कोल, दुरमत देख दयाल होए, हथों उसनू दितौन तोता। राम नाम उपदेश कर, खेल गए दे बनच सोहता। लिव लागी तिस तोत्यों, नित पढ़ाए करे असोता। उन्हें एक तोता दे दिता महापुरख ने, कह लगे इस तोते नू रोज राम नाम पढ़ाया कर, ये बोलना सीख जाएगा। एक जुगती सी, और रोज राम नाम पढ़ाउण लग पई भी फकीर का काम है, मैं कर दिया शायद मेरा भी कोई पार उतारा हो जाए। वो हुण जदों मंद कर्मां दा समा सी जिहड़ा वो इधरले पासे लाउण लग पई। होया कि कहते एक वक्त ऐसा आया, मालिक की रहमत हुई, उसके जीवन में बड़ा बड़ा पलटा आ गया। कहते राम नाम उपदेश दे, खेल गए दे बनच सोहता। लिव लागी तिस तोत्यों, नित पढ़ाए करे असोता। हर रोज जागदी है ते उहदे तो लिव लागी। एक वक्त ऐसा आया, अंत काल जमजाल तोड़, नरकां विच न खतो सगोता। गई बैकुंठ बेबान चढ़, नौ नरैण अछोत अछोता, छोत अछोता। कह लगे मालिक दे घर कबूल हो गई। उहदे जीवन विचों पचत उदाहरण राम का नाम लेंदे जीवन विचों पाप खत्म हो गए। एक वक्त ऐसा आया, नौ निथावे मान मनुता। कहते मालिक ने घर मुख उजला लेके चले गई, प्रवान हो गई। जे इतने बड़े पाप करने वाले लोग भी पवित्र हो सकते ने, मना तेनू क्यों नहीं यकीन आता। हर को नाम सदा सुखदाई, जान को सिमर अजा मन उधरियो। गनका हूँ गत पाई, पंचाली को राजसभा में राम नाम सुध आई। ताको दुख हरियो करना में अपनी पैज बढ़ाई। जे नार जस कृपा निध गायो, ताको पयो सहाई। कहो नानक में यही भरोसा है, गही आन शरनाई। इस भरोसे ते भी तो पतता भी पवित्र कर देना, उन्होंने भी पवित्र कर देना। भाई वीर सिंह का एक बचन बड़ा प्यारा है, कहते सजना मैं तेन दो गल्लां समझाउणियां चाहुंदा। पहली ये समझाउणी चाहुंदा है, मैल लगदी किवें है, मैल लगदी किवें है। दूजी तेनू ये दसना चाहुंदा मैल हटदी किवें है, मुड़ अपने असरे का रूप किवें बणीदा है। भाई वीर सिंह की एक कविता के बोल ने, कहते मैं एक बारी एक भट्ठी के कोल लंघदियां वेखिया, एक कोयला तिड़क के बाहर डिग पिया। वेखदियां सार ही वो काला हो गया। कहते वो काला होया ते सबब बनिया। मैं उन्होंने घर चुक लिया भी तेरा पहला सूहा गूढ़ा रंग लाल मैं वेखिया ते तेरा काला रंग होया, कारण की बनिया। कहते मैं उन्होंने धोता भी साबण ला ला के, फिर मैं उन्होंने दुध विच पाया। किसी आख्या दुध पतला होंदा है, फिर मैं दही विच पाया, संघना होंदा है। वो दही विच पाया दुध, उस पानी में धोता बार बार। कहते सच करके जानियो, ज्यों उन्होंने मैं रखता सी वो फिर दोबारे सुख के काला हो जाता सी। मेरे चढ़ाए रंगां दा कोई असर ना होया। रंग भी करके देख लिया। किसी सियाणे बंदे ने आखिया
की करना है? कहन लगे मैं दे दो रंग वेखे ने, पहला रंग वेखिया अकरूपता वाला रंग भी वेखिया। कहंदे तैनूं रंग करन दी लोड़ नहीं, दुध विच पाउण दी लोड़ नहीं, दही विच पाउण दी लोड़ नहीं। कहंदे की करा? कहंदे जिथे विछड़ के आया इहनूं उत्थे ही भेज दे ते वेखी ਉਹ ਕੋਲੇ ਨੂੰ ਚੁੱਕਿਆ, जे जिथे भट्ठी मगी हुई सी ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ फिर सुट दिता। वेखदियां ही वेखदियां कोला जिहड़ा वो फिर दोबारे लाल हो गया। भाई वीर सिंह की कविता के बोल ने, साबण लाला धोता कोयला, दुध दही विच पाया, खुंब चाड़ रंगण भी धरिया, पर रंग न उस बटाया। विछड़ के कालक सी आई, बिन मिलिया नी लैंदी, अंग अग दे लाके वेखो, चढ़दा रूप सवाया। सच करके जानियो असी रब तो विछड़े हुए, संसार रोगी, नाम दारू, मैल लागे सच बिना। किते गुरु के नाम का सहारा ले लईए, रब के नाम का सहारा ले लईए, वो साडे जीवन विचों पाप कढ़ देंदा है। भरीए हथ पैर तन दे, पानी धोते उतर सके, मोट पलीती कपड़ होए, जे साबुन लईए वो धोए। भरीए मत पापां के संग, ओ धोपे नावे के रंग। साडे माण मत्ते इतिहास विचों एक बीबी महताब कौर होई है। रणजीत सिंह की ये लड़की सी, बड़ी सियाणी दल, ब्याह दित्ती छोटी उम्र विच। साईं नूं कुछ होर ही मंजूर सी। जदों मुकलावा गया, पति बहुत बीमार हो गया, कुछ ही दिनों चढ़ाई कर गया। जिमें कुआरे चौ लेके पति दे वेड़े गई सी, उवें ही कुआरे चौ लेके गई सुहागण बन के सी, आ गई विधवा बन के। साडे समाज विच विधवा नाल बड़ा बुरा विहार किया जाता है। जवानी उम्र है, पहाड़ वर्गी जिंदगी की करे। आखिरकार पशु पंछियों नूं पानी पिलाउण लग पई। उहदे कोलों एक दिन शिबू मल नां दा बंदा, बड़ा वड्डा अमीर सेठ सी, उन्हें पानी पीता। सुंदरता तो हैरान होया, सादगी विच भी इतनी सुंदरता है। पहुंच पड़ताल करके उन्हें शादी की गल कर ली, चादर चढ़ा के ले गया। महताब कौर शिबू मल दे घर गई है। जांदियां सार पता लगा भी ये ते पहला ब्याया होया, ये बच्चे ने। एक तो पहला सट वजी सी, दूजी हुण वज गई। फिर मन विच विचार बनी, मना कित्थे भटकेंगी, इत्थे गुजारा कर ले, कोई गल नहीं। मन विच विचार बना ली, रहने का प्रबंध कर लिया। जदों शिबू मल दे कोल बैठा है ते उदों कोल बैठदियां सार ही एक गल कहन लगा भी तैनूं कुछ गल्लां दी अज इत्थे परण करने पैणे ने, फिर आपां जिंदगी की शुरुआत कर सकने। दसो। कहन लगे पहली गल ये है भी तू मेरे नाल समाज विच किधरे जा नहीं सकती, मेरी घरवाली जाएगी, तू नहीं जा सकती। उजड़ गई दुनिया, बर्दाश्त कर लिया। दूजी गल ये, तू बच्चे नूं जन्म नहीं दे सकती, किसी नूं तू मां नहीं बन सकती। ताहां निकल गईयां, कर कुछ नहीं सी सकती। तीजी गल, मेरी समुची जमीन जायदाद विचों तेरा कोई हिस्सा नहीं होगा। परवानी भी कर लिया। कुछ समा बीतिया, कुदरत मेहरबान हुई, रब ने कुख हरी कर दी। शिबू मल नूं पता लग्या, कतल करवा दिता बच्चे का। एक बच्चे का कतल, दो बच्चे का कतल, तीन बच्चे का कतल, चार बच्चे का कतल। जदों पंजवीं बारी फिर कुदरत मेहरबान हुई, पैर पकड़ के बैठ गई महताब कौर, शिबू मल ना इन्हें पाप करवा,
एक बच्चे नूं जन्म लै लैण दे, मैं तेरा नां नहीं लैण दियांगी, बच्चे नूं कहांगी तेरा, कहांगी नहीं भी तेरा बाप शिबू मल है। बच्चे नूं जन्म दिता, ਉਹਦਾ नां रखिया राम जी दास। ਵੱਡਾ ਹੋਇਆ, पढ़न पा दिता। मां लाहौर विच घाटे पै गए, प्लेग पै गई, घाटे पै गए, मजबूर हो गई मां लाहौर विच लोकां दे घर काम करदी है। नहीं सी पता पुत खन्ने पढ़दा है, राम जी दास नूं कोल बुला लिया, 4 दिन मेरे कोल कट जा। जिहड़ी रूटीन हुंदी उहदे च पता नहीं लगदा। मां लोकां दे घर काम करन जांदी, खंघ उठदी है, साह चढ़ जांदा है, कई बारी इतनी मजबूर हो जाती है, साह देना औखा हो जाता है, पर कोई 2 घुट्टा पानी दिया भी नहीं दिंदा, गालां कढ़दा है, बुरे बचन बोलदा है। उन्हें अपनी मां नाल जाके वेखिया, शाम नूं प्रशादा बनाया, मां ने थाली च पा के अगे रखिया, कहना मां प्रशादा नहीं छकना। पुत क्यों? मैं तो सोचता सी मां तू अपनी कमाई का प्रशादा देनी है, मैनू अज पता लग्या तू अपने खून का प्रशादा देनी है। मां के खून का प्रशादा नहीं मेरे को खाया जाना, छड्ड काम नूं, मैं तेरा इलाज करवाउणा है। इलाज करवाउण लैके आए, पता लग्या टीवी का रोग है कि आखिरी स्टेज पे है। लेके चले गए, सौरे घर गए, उन्होंने ठोकरां मार दित्तियां, पेके घर गए, उन्होंने ठोकरां मार दित्तियां। कहन लगी पुत हुण कित्थे जावांगे? कहंदे मां एक थां है जिथे ठोकरां नहीं बजदियां, जे तू कमे उत्थे लै चलां। कहन लगी लै चल। कहन लगी वो किहड़ी थां है? कहंदे धन गुरु रामदास का घर, अमृतसर आ गए। एक टुटे जे छपड़े थले इक्को कंबल है, अपनी मां नूं वो थले बिछा के ते उत्ते दे दिता। एक दिन बहुती खांसी उठी, मां की पिठ नूं मलिया, 2 घुट्टा पानी दियां पिलाउणियां चाहिए। कहंदी पुत पानी ना पिला, मेरे नाल तू गल्लां कर लै। दस मां। कहंदी 4 गल्लां मैं तेरे नाल साझियां करनियां ने। दस मां। कहंदी पहली गल तू नफरत ते नहीं करेगा? कहना मां तेरे नाल नफरत? दस ते सही गल की है? कहन लगी पुत दूजी गल यह है भई मैं विआह कोई अपने शौक लिए नहीं सी करवाया, मजबूरी बस करवाया सी, विधवा नूं जीवन कोई नहीं सी देंदा। दूजी गल पुत वे मैं कुख विच बच्चे कतल करवाए ने, उन्हां दा पछतावा मैनूं चैन नहीं आउण दिंदा, मैं पापण है बहुत वड्डी। तीजी गल पुत वे हर मां बाप अपने पुत नूं कुछ ना कुछ बना के दे के जाते ने, मैं तेनूं सड़क किनारे छड्ड के चली है, मैनूं माफ कर दे। घुट के मां नूं सीने नाल लाया, कहंदे मां पछतावा तू ना करी, पछतावा मैं करांगा। पहली गल जे तू विआह विकारी भावना नाल नहीं सी करवाया तो यकीन करके जानी मैं सारी जिंदगी विआह नहीं करवावांगा ते विकार किसी नूं नेड़े नहीं आउण देवांगा, तेरे नाल वादा है। कितना पवित्र जीवन होगा। दूजी गल मां तू कहनी मैं बच्चे कतल करवाए, जेड़े बच्चे मां बाप नहीं संभालते मैं उन्हें बच्चों को संभालिया करांगा। तीजी गल मां जे तू घर नहीं बना के चली, मैं वादा करदे जिंदगी पर मैं घर नहीं बनावांगा। और राम जी दास अज भगत पूर्ण सिंह है प्यार वालिओ, जिन्हें सारी जिंदगी अपना घर नहीं बनाया, सिर्फ लोगों को सांभदा रहा। कई नौजवान बच्चियां उहदे पिंगलवाड़े विच आईयां, पर उहदा मन कदे विकारी ना होया। मना हुण दी तेरे अखां दे सामने दी उदाहरण है। तैनूं यकीन नहीं आता जे किते गुरु शब्दां दा सहारा ले लें, मन विचों पाप दी दुनिया, विकारां दी दुनिया खत्म हो जाती है। समा थोड़ा बचे, अज कोशिश करांगे शब्द विचार सकीए। पवित्र होए से जनो जिनी हर ध्याया। तीर्थां ते पवित्र नहीं होना, जंगलों में बैठ के पवित्र नहीं तो होना। मना
ਉਹ ਪਵਿੱਤਰ ਹੋ ਗਏ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਹਰੀ ਨੂੰ ਧਿਆਇਆ, ਰੱਬੀ ਇਬਾਦਤ ਕੀਤੀ, ਸਾਈਂ ਦੀ ਮੌਜ ਵਿੱਚ ਜੁੜੇ। ਹਰ ਧਿਆਇਆ ਪਵਿੱਤ ਹੋਏ, ਗੁਰਮੁਖ ਜਿਨੀ ਧਿਆਇਆ। ਹਰ ਧਿਆਇਆ ਪਵਿੱਤ ਹੋਏ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਹਰੀ ਨੂੰ ਧਿਆਇਆ ਉਹ ਪਵਿੱਤਰ ਹੋ ਗਏ, ਰੱਬ ਦਾ ਰੂਪ ਹੀ ਬਣ ਗਏ। ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਵਿਸਰੇ ਨਾਮ ਸੇ ਕਨੇਹਿਆ, ਭੇਦ ਨਾ ਜਾਣੋ ਮੂਲ ਸਾਈਂ ਜਿਹਾ। ਮਾਲਕ ਦਾ ਰੂਪ ਬਣ ਗਏ। ਪਰ ਨਾਲ ਪੰਕਤੀ ਗੁਰਮੁਖ ਜਿਨੀ ਧਿਆਇਆ। ਗੁਰਮੁਖ ਦਾ ਅਰਥ ਇੱਥੇ ਗੁਰੂ ਦੀ ਸ਼ਰਨ ਵਿੱਚ ਪੈ ਕੇ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਗੁਰੂ ਦੀ ਸ਼ਰਨ ਵਿੱਚ ਪੈ ਕੇ ਧਿਆਇਆ। ਕਿਉਂਕਿ ਗੁਰੂ ਦੱਸਦਾ ਭਈ ਨਾਮ ਜਪਣਾ ਕਿਵੇਂ ਹੈ। ਆਪਣੀ ਮਰਜ਼ੀ ਨਾਲ ਜਪਿਆ। ਜੋਗੀ ਬੜੇ ਧਿਆਨ ਲਾਉਂਦੇ ਸਨ, ਜੋਗੀ ਸਾਰੇ ਬੈਠੇ ਸਨ, ਕਿੱਡੀ ਕਿੱਡੀ ਲੰਮੀ ਤਪੱਸਿਆ ਕਰਦੇ ਸਨ। ਜੋਗੀਆਂ ਦੇ ਨਾ ਕਿਸੇ ਧੀ ਭੈਣ ਨੂੰ ਮੈਲੀ ਨਜ਼ਰ ਨਾਲ ਵੇਖਣ ਦਾ ਕੋਈ ਜ਼ਿਕਰ ਹੈ, ਨਾ ਹੀ ਕਿਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੋਰ ਕੋਈ ਕਰਮ ਕਰਨ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਹੈ। ਪਰ ਗੁਰੂ ਨੂੰ ਪ੍ਰਵਾਨ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕੇ। ਦੋ ਗੱਲਾਂ ਚੇਤੇ ਵਿੱਚ ਰੱਖਣ ਵਾਲੀਆਂ ਨੇ ਸਦਾ ਹੀ। ਇੱਕ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਭਗਤੀ, ਇੱਕ ਹੁੰਦਾ ਗੁਰਪ੍ਰਸਾਦ। ਭਗਤੀ ਤੇ ਬਾਬਾ ਸ਼੍ਰੀ ਚੰਦ ਨੇ ਬਥੇਰੀ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਪਰ ਗੁਰਪ੍ਰਸਾਦ ਨਹੀਂ ਵਰਤਿਆ। ਭਗਤੀ ਤੇ ਬਾਬਾ ਮੋਹਨ ਜੀ ਨੇ ਬੜੀ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਪਰ ਗੁਰਪ੍ਰਸਾਦ ਨਹੀਂ ਵਰਤਿਆ। ਭਗਤੀ ਤੇ ਬਾਬਾ ਮਿਹਰਬਾਨ ਨੇ ਬੜੀ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਪਰ ਗੁਰਪ੍ਰਸਾਦ ਨਹੀਂ ਵਰਤਿਆ। ਰਾਮ ਰਾਏ ਕਿੱਡਾ ਉਹ ਹੋਵੇਗਾ ਜਿਹਨੂੰ ਗੁਰੂ ਨੇ ਏਡਾ ਵੱਡਾ ਮਾਣ ਦੇ ਕੇ ਭੇਜਿਆ, ਪਰ ਗੁਰਪ੍ਰਸਾਦ ਨਹੀਂ ਵਰਤਿਆ। ਗੁਰੂ ਦੀ ਕਿਰਪਾ ਨਾਲ ਭਗਤੀ ਕਰਨੀ ਇੱਕ ਵੱਖਰੀ ਚੀਜ਼ ਹੈ। ਗੁਰਮੁਖ ਜੀ ਨਹੀਂ ਧਿਆਇਆ। ਪਵਿੱਤ ਮਾਤਾ ਪਿਤਾ ਕੁਟੰਬ ਸਹਿਤ ਦਿਓ, ਪਵਿੱਤ ਸੰਗਤ ਸਭਾਈਆ। ਚਾਰ ਚੀਜ਼ਾਂ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਆਇਆ। ਇੱਕ ਮਾਤਾ ਪਿਤਾ ਦਾ, ਦੋ ਹੋ ਗਏ, ਦੂਜਾ ਕੁਟੰਬ, ਤੀਜਾ ਕੁਟੰਬ ਦਾ, ਚੌਥਾ ਸੰਗਤ ਦਾ। ਇਹ ਚਾਰ ਬੰਦੇ ਕਦੇ ਲਾਹਾ ਨਹੀਂ ਲੈਂਦੇ। ਮਾਤਾ ਪਿਤਾ ਵੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਭਰ ਇਹੀ ਸੋਚਦੇ ਰਹਿੰਦੇ ਨੇ ਸਾਡਾ ਤੇ ਪੁੱਤ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਮਹਿਤਾ ਕਾਲੂ ਜੀ ਨੂੰ ਸੋਝੀ ਆਈ, ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਸੀਨੇ ਨਾਲ ਲਾ ਕੇ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ, ਪੁੱਤ ਅੱਜ ਜੋ ਸਮਝਾਇਆ ਤੇ ਪਹਿਲੇ ਹੀ ਸਮਝਾ ਦੇਣਾ। ਅੱਜ ਜੋ ਪਤਾ ਲੱਗਿਆ ਮੈਨੂੰ ਵੀ ਇਹ ਤੇਰਾ ਪੁੱਤ ਨਹੀਂ ਹੈ ਨਾਨਕੇ, ਤੇ ਰੱਬ ਦਾ ਰੂਪ ਹੈ, ਪਹਿਲੇ ਸਮਝਾ ਦਿੰਦਾ। ਤਾਂ ਬੇਨਤੀ ਕਰਾਂ, ਮਾਤਾ ਪਿਤਾ ਨੂੰ ਵੀ ਬਹੁਤ ਲੰਮਾ ਸਮਾਂ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦਾ, ਉਹ ਵੀ ਲਾਹਾ ਨਹੀਂ ਲੈਂਦੇ। ਦੂਜਾ ਕੁਟੰਬ, ਪਰਿਵਾਰ ਵਿੱਚੋਂ, ਪਰਿਵਾਰ ਵਾਲੇ ਵੀ ਸਮਝਦੇ ਨੇ ਸਾਡਾ ਆਪਣਾ ਹੀ ਹੈ। ਤੀਜਾ ਸੰਗਤ ਸਬਾਈਆ, ਜਿਹੜੇ ਨਾਲ ਦੇ ਸੱਜਣ ਮਿੱਤਰ ਦੋਸਤ ਸੰਗਤ ਵਿੱਚ ਰਹਿਣ ਵਾਲੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਕੱਲ੍ਹ ਤਾਂ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਖੇਡਦਾ ਸੀ। ਗੁਰੂ ਅਮਰਦਾਸ ਜੀ ਕੋਲ ਇੱਕ ਬਖਤਾਵਰ ਮਲ ਆਇਆ ਸੀ। ਉਹ ਆ ਕੇ ਕਹਿਣ ਲੱਗਾ ਵੀ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਕੀ ਚੱਕਰ, ਆਪਾਂ ਤਾਂ ਇਕੱਠੇ ਖੇਡਦੇ ਰਹੇ। ਉਹ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਬਰਾਬਰ ਹੀ ਬੈਠ ਗਿਆ ਸੀ। ਸਿੱਖਾਂ ਬੁਰਾ ਮਨਾਇਆ। ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਤੁਸੀਂ ਫਿਕਰ ਨਾ ਕਰੋ, ਅਸੀਂ ਇਕੱਠੇ ਖੇਡਦੇ ਰਹੇ ਬਚਪਨ ਵਿੱਚ। ਤਾਂ ਗੁਰਦੇਵ ਨੇ ਫਿਰ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਮਝਾਇਆ ਵੀ ਭਲਿਆ ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ। ਉਹ ਲੋਕ ਜਿਹੜੇ ਸੱਜਣ ਮਿੱਤਰ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਉਹ ਵੀ ਲਾਭ ਨਹੀਂ ਲੈਂਦੇ, ਪਰ ਕਹਿੰਦੇ ਰੱਬ ਦੇ ਨਾਮ ਵਿੱਚ ਏਡੀ ਵੱਡੀ ਤਾਕਤ ਹੈ। ਉਹ ਮਾਤਾ ਪਿਤਾ, ਪਰਿਵਾਰ ਨੂੰ ਅਤੇ ਸੱਜਣ ਮਿੱਤਰਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਪਵਿੱਤਰ ਕਰ ਦਿੰਦੇ ਨੇ। ਕਿਉਂਕਿ ਜਦੋਂ ਉਹ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਬੋਲਦਾ ਹੈ ਤੇ ਸੁਣਨ ਵਾਲਿਆਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਵੀ ਉਹ ਬਚਨ ਟਿਕ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਕਹਿੰਦੇ ਪਵਿੱਤ, ਸੁਣਦੇ ਪਵਿੱਤ, ਸੇ ਪਵਿੱਤ ਜਿਨੀ ਮਨ ਵਸਾਇਆ। ਉਹਦੇ ਕੋਲ ਬੈਠ ਕੇ ਕਹਿਣ ਵਾਲੇ, ਸੁਣਨ ਵਾਲੇ ਤੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਉਹ ਅੰਦਰ ਵਸਾ ਲਿਆ, ਉਹ ਸਾਰੇ ਹੀ ਪਵਿੱਤਰ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਨੇ, ਸਾਰੇ ਕਬੂਲ ਹੋ ਜਾਏ। ਪਵਿੱਤਰ ਦਾ ਮਤਲਬ ਕੀ ਹੈ? ਫਿਰ ਛੋਟਾ ਜਿਹਾ ਧਿਆਨ ਦਿਓ। ਜਿਹਦੇ ਅੰਦਰ ਪਵਿੱਤਰ ਵਿਚਾਰ ਹੈ, ਉਹਦਾ ਪਵਿੱਤਰ ਕਿਰਦਾਰ ਹੈ, ਉਹਦਾ ਪਵਿੱਤਰ ਵਿਹਾਰ ਹੈ। ਤਿੰਨ ਚੀਜ਼ਾਂ ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਨਾਲ ਜੁੜੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਨੇ। ਜੇ ਵਿਚਾਰ ਮੈਲੇ ਹੋਣਗੇ ਤੇ ਉਹਦਾ ਕਿਰਦਾਰ ਮੈਲਾ ਹੋਏਗਾ, ਕਿਰਦਾਰ ਮੈਲਾ ਹੋਏਗਾ ਤੇ ਉਹਦਾ ਵਿਹਾਰ ਮੈਲਾ ਹੋਏਗਾ। ਕਿੰਨਾ ਕੁ ਚਿਰ ਲੁਕੋ ਕੇ ਰੱਖ ਲਏਗਾ। ਗੁਰੂ ਨੇ ਕਿਰਪਾ ਕੀਤੀ, ਸਾਨੂੰ ਪਵਿੱਤਰ ਵਿਚਾਰ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ। ਪਵਿੱਤ ਹੋਏ ਸੇ ਜਨਾ ਜਿਨੀ ਮਨ ਵਸਾਇਆ, ਕਹਿ ਨਾਨਕ ਸੇ ਪਵਿੱਤ ਜਿਨੀ ਗੁਰਮੁਖ ਹਰ ਹਰ ਧਿਆਇਆ। ਉਹ ਲੋਕ ਪਵਿੱਤਰ ਹੋ ਗਏ, ਮਨਾ ਸਾਈਂ ਦੇ ਦਰ ਤੇ ਕਬੂਲ ਹੋ ਗਏ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਗੁਰੂ ਦੀ ਸ਼ਰਨ ਵਿੱਚ ਪੈ ਕੇ ਸਾਈਂ ਦੇ ਨਾਮ ਨੂੰ ਜਪਿਆ, ਰੱਬੀ ਗੁਣਾਂ ਨੂੰ ਸਾਂਝ ਪਾਈ ਹੈ। ਆਓ ਪਿਆਰ ਵਾਲਿਓ, ਆਏ ਤਾਂ ਪਵਿੱਤਰ ਸਾਂ,
जगत की नगरी विच औगणा के कारण करके अपवित्र हो गए। पर हुण मालिक नूं बेनती करिए, वो पवित्र कर सकदा है। अपने नाम दे नाल जोड़ के उहदे नाम नाल जुड़ जाइए, फिर साडा जीवन ए लोक सुखीए परलोक सुहेले। नानक हर प्रभ आपे मेले। भुल्लां नूं खिमा करना, प्यार नाल आखो जी वाहिगुरू जी का खालसा वाहिगुरू।